Hello everyone. So in this video we will learn about the first chapter, the cell, its structure and function. So after observing the name of the chapter, हमें ये पता चल रहा है कि ये चैप्टर सेल के बारे में है. It's about cell. So what is cell? Question arises that what is cell? So first we will need to learn what is cell. So there is a picture given in your book of cell. I'm just showing you. This is the first picture of cell given in the book, and so now let's go through the lines. There are large variety of organisms on this earth that are all distinct in their form and structure. तो इसका मतलब यही होता है कि अर्थ में बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर डिस्टिंक्ट इन देयर फॉर्म ऑफ एंड स्ट्रक्चर, जो अपने फॉर्म और स्ट्रक्चर में अलग अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट करते हैं. However, they all possess similarities in their basic structure, but there are similarities in their basic structure. उनके basic structure में similarities हैं. Just as building is made up of bricks, similarly the bodies of all plants and animals are made up of cell. जिस तरह एक बिल्डिंग ब्रिक्स के बनी हुई होती है, तो हमारे सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, एनिमल्स, प्लांट्स हो या ह्यूमन हो, सबके बॉडी सेल से बने हुए होते हैं. उसके आगे देखते हैं. फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया और एमोइबा टू लार्ज ऑर्गेनिजम्स लाइक एलिफेंट, व्हेल और जाइगेंटिक ट्रीज, तो सभी सेल से ही बनते हैं. इसका मतलब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, the basic unit of all organism. So our question which was arise that what is cell is being answered here. Cell, the basic unit of all organism. That means cell is the basic structural unit of all organism. Now the next para. Some cell exist as unicellular organism. So what are unicellular organism? Single cell organism, only one cell organism. जो एक सेल से बने हुए होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. While other are part of multicellular organism, तो obviously multicellular is the opposite of unicellular. Multicellular means more than one cell. Many cell. मल्टीसेलुलर मीन्स मल्टी सेल्स, बहुत सारे सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म. Certain basic functions like nutrition, respiration, growth, development and reproduction are performed by cell in all organisms. So there are different type of cell for different type of work, just like respiration, growth, development, reproductions are performed also by the cells. Okay, so मतलब respiration होते हैं, growth होते हैं, development होते हैं, reproduction होते हैं, सभी सेल के द्वारा ही होते हैं, अलग अलग सेल के द्वारा. These functions are essential for survival of organism. और ये ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं. We therefore regard the cell as the basic structural as well as functional unit of all organisms. Therefore we regard cell as the basic structure and functional unit of all organisms. That means what is the definition of cell according to our book? The cell हम बोल सकते हैं कि cell is the basic and structural unit of ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसके साथ फंक्शनल भी जोड़ सकते हो. लास्ट में दिया हुआ है. In this chapter we will study about the variety in the shape and size of structure and function of a cell of different organism. तो यही दिया हुआ है यहाँ पे. तो इसको पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. Now our next topic is discovery of the cell. सेल का डिस्कवरी. सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग. सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है सारे लिविंग बीइंग का. They remained undiscovered for a long time because the majority of cells are too small to seen by the unaided eyes.
सेल इतने छोटे होते हैं कि वो हमें अननेड आइज से नहीं दिखते हैं, इसलिए सेल बहुत दिनों तक अनडिस्कवर्ड थे। उसके बाद आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेल तो किसी ने तो डिस्कवर्ड किया था और उनके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके आगे हैं उनके बारे में और कैसे उन्होंने डिस्कवर किया था ये भी है। तो उससे पहले मैं बोल देती हूँ कि सेल डिस्कवर पे बहुत मज़ेदार एक कहानी है। वो है बस ऐसे एक राजा के हुक्म पे जा रहे थे, राजा ने उनको हुक्म दिया था कि ये करो वो करो, और वो हुक्म का पालन करते हुए सडनली उन सेल डिस्कवर कर लिए। तो दैट्स टू इंटरेस्टिंग। अब चलो आगे चलते हैं। इट वॉज ओनली आफ्टर द advent of optical instrument in 17th century that the cell was discovered and its basic features were studied. तो वो कब हुआ? 17th सेंचुरी यानी कि 1600 कुछ में। तो वो कब हुआ था? 1665 यहाँ दिया हुआ है। तो दैट्स 1665 में वो डिस्कवर्ड हुआ था बेसिक यूनिट के द्वारा, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। जैसा माइक्रोस्कोप होता है उसी तरह के एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो हुआ था, जो रॉबर्ट हुक ने खुद बनाया था, और तभी उसके जो फीचर्स थे वो भी स्टडी किए गए थे। Robert Hooke was the first scientist who in 1665 observed a thin slice of cork obtained from the bark of a tree. तो उन्होंने एक बार्क ऑफ ट्री में अपना माइक्रोस्कोप से देखा था, जहां उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था थ्रू ए सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। ओके, आई हैव डिस्कस्ड दिस विथ यू बिफोर. He observed that they had a honeycomb-like structures consisting of a little compartment, and Latin cell means little room. So cell were looking like this, little compartment of honeycomb, if you have seen. तो जब उन्होंने देखा तो वो कुछ इस तरह का देख रहे थे, जो लिटिल रूम्स की तरह लग रहे थे, और लैटिन में लिटिल रूम्स को क्या बोलते हैं? सेल। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? सेल है ना, अभी भी हम इसे सेल ही बोलते हैं। तो इतना तो हमने देख लिया, अब चलते हैं आगे। It was later explained that this compartment were actually dead cell bound by cell wall. तो ये कंपार्टमेंट की तरह इसलिए दिख रहे थे जो कि वो डेड सेल थे और वो सेल वॉल से बॉन्ड किए हुए थे। तो सेल वॉल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़े से बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो बाद में दी हुई है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना। सो वी हैव लर्न द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल्स, and so now we will go through the cell. So before starting, I have already told you that cell is the basic and structural unit of every organism. So let's get started and go through the book. We now know that living organisms are made of cell. अब हमें यह पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए होते हैं। The cell have the same basic structure, but they are different with respect to their numbers, shape and size in different living organisms. जो सेल है वो तो सभी के बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं एवरी ऑर्गेनिजम्स के, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लेकिन जो बात है वो ये है कि साइज में और शेप में, नंबर में वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, इवन सेम ऑर्गेनिजम्स में भी वेरी करते हैं इन अलग अलग ऑर्गेन्स। ओके, तो हमने ये इंट्रोडक्टरी लाइन पढ़ ली इस टॉपिक की। उसके बाद एक डीयूनो है, तो मैं डीयूनो की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और वो आप ज़रूर देखना। दैट विल प्रोवाइड यू मच इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ऑल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज इन लिविंग। So here's variation in cell number, shape and size in living organism. So variation मतलब vary करता है। तो first है cell number. An amoeba and earthworm are of different sizes. एक amoeba और एक earthworm अलग अलग साइज के होते हैं। The difference in the size of organism is due to the number of cells present in them.
So suppose if I am 5 feet 6 inch and you are 5 feet, then whose number of cell is much more? Mine. Okay, तो जिसके बारे में जितना ज़्यादा सेल होगा उसकी साइज भी उतनी ज़्यादा होगी. तो this difference in size of organism is due to the number of cell present in them. While amoeba is a living organism consisting of a single cell and an earthworm has millions of cells. तो ये जाहिर सी बात है कि क्योंकि अमोएबा में सिंगल सेल होती है तो अमोएबा छोटी ही होगी, और अर्थवर्म जो इतनी छोटा सा होता है, इतना छोटा सा होता है लगभग, और उसमें अगर मिलियंस ऑफ सेल है तो अमोएबा में एक सेल होती है तो वो कितनी छोटी होगी, ये सोचने वाली बात है. ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड hence on the basis of their number of cell, living organisms can be classified into two categories, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. तो ये मैंने आपको को पहले भी बताया था कि जिनमें एक सिंगल सेल रहते हैं उन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं, जिनमें डबल्स या ज़्यादा रहते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं. तो इसलिए हम सेल के नंबर के हिसाब से दो कैटेगरी में भाग कर सकते हैं इसको. अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं. नाउ यू कैन सी इन द नेक्स्ट पेज लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर दो कैटेगरी में भाग किया गया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. So unicellular organisms are the organisms consist of a single cell, and multicellular organisms are organisms made up of many cells. So examples of unicellular are Agglutinin, Amoeba, Paramecium. Multicellular, humans, bird, animal. We can give so many examples of multicellular organism as we see this in our day-to-day life, and we own our multicellular organism. But unicellular organism we never seen by our, it can never be seen by our naked eyes because it is made of only one cell. If earthworm made of a million cells is just this size, तो जो एक सिंगल सेल से बना हुआ होगा वो कितनी बड़ी होगी, ये तो आप आराम से सोच सकते हो, वो बहुत ही छोटी होगी. यहाँ पर सेल शेप के बारे में है, अब हम सेल शेप पढ़ेंगे. सेल शेप. The shapes of cell differ not only in different organisms but also in different organ of the same organisms. So I have already told you that the numbers of cells and the shape of cells varies in different organism, not only on different organism but also vary in different organs of different organisms. Okay, now they may be oval, अंडाकार, स्पेरिकल मतलब जैसे बॉल होते हैं, क्यूबॉइडल आई मीन क्यूबॉइड के शेप की, जस्ट लाइक आवर बुक. ओके, बुक, कॉपी, दीज आर क्यूबॉइडिकल. नाउ फाइबर लाइक और पॉलीगोनल. सो फाइबर लाइक मीन्स फाइबर के जैसे. इफ यू आर एबल टू सी दिस, कैन सी दिस वन इज ए फाइबर, ब्लैक फाइबर. ऐसे भी सेल होते हैं. ओके, एंड पॉलीगोनल जो पॉलीगॉन के शेप के होते हैं, मतलब सेल डिफरेंट शेप के होते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड इन द सेम ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ऑर्गन्स. Now see, these difference in shape are due to their location. तो ये क्यों होता है? उनके लोकेशन के वजह से. सपोज जो हार्ट में सेल रहेंगे वो अलग दिखने में होंगे, और जो हमारी किडनी में सेल रहेंगे वो अलग दिखने में होंगे. सेल तो हर जगह है ना, लेकिन वो अलग अलग दिखने में होते हैं. एंड फंक्शंस इन द टिश्यूज, और उनके फंक्शंस. सेल से हम जानते हैं कि सेल से हम टिश्यू बनाते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से बॉडी. सो सेल की जो टिश्यू बनती है, टिश्यू के फंक्शंस जो रहते हैं उसके वजह से भी वो शेप में डिफरेंस करते हैं, क्योंकि किसी को बड प्लम्प करना पड़ता है तो किसी को नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करना पड़ता है. ओके, हम आगे यही पढ़ेंगे. चलो देखते हैं. फॉर इंस्टेंस ए नर्व सेल हैज़ टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू ऑर्गन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी. तो नर्व सेल को क्या, नर्व इम्पल्स को जो है
ट्रांसमिट करना पड़ता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में. हेंस दे प्रोसेस ए लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. इसके वहाँ उनकी क्या होती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर रहती है. ओके, यहाँ नीचे दी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी नर्व सेल. ओके, मैं दिखाती हूँ. इफ़ यू आर एबल टू सी, दिस वन इज nerve cell. Okay, this one is smooth muscle cell. This is Shalom myodonus. This is fat cell. This is amoeba. This is liver cell and this is red blood cell. So now again go through our topic. So where we are here. तो इसलिए उसके फाइबर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जैसे मैंने दिखाया. तो मैंने शेप्स पे तुम लोगों को दिखा दिया. अब चलते हैं सेल साइज में. हेयर्स व्हाट इज गिवन अवर सेल साइज. तो चलिए देख लेते हैं. सेल वैरी कंसिडरली इन देयर साइज. वो वैरी करते हैं उनके साइज में कंसिडरली. तो यहाँ पर सेल की साइज अगर 0.1 माइक्रोन हुआ तो कहीं पर सेल की साइज 0.3 माइक्रोन भी हो सकती है. द स्मॉलेस्ट सेल PPLO की फुल फॉर्म होती है प्यूरो पेन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसे हम माइक्रोप्लाज्मा भी बोलते हैं. ओके, सो इट इज अबाउट 0.1 माइक्रोन डिनोटेड एज म्यू. सो दिस साइन इज कॉल्ड म्यू. ओके, सो दिस साइन इज कॉल्ड म्यू, जिसकी वैल्यू होती है -6 m. ओके, तो म्यू की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁶ m. वो भी बुक में देख लेंगे. तो चलो बुक की ओर. सो डोनेटेड इज म्यू इन डायमीटर. 1 म्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ m. So the ostrich egg is considered as the largest egg, जिसकी डायमीटर होती है 170 मिलीमीटर. ओके, तब चलो हम दूसरे पेज की ओर चलते हैं. So the hen's egg also represented as a single cell is big enough to see with the unned eyes. तो मैंने जैसे बोला कि हम एमोइबा को अननेड आइज से नहीं देख सकते क्योंकि वो सिंगल सेल से बना है. लेकिन हमारे हेंस की जो एक होती है वो एक सिंगल सेल को ही रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो इतनी बड़ी होती है कि हम उसे अननेड आइज से देख सकते हैं. ओके, सो नाउ टेक ए हेंस एग, जेंटली ब्रेक इट सेल एंड transfer the content to a flat plate. You will observe two clear portions. The central yellow mass is yolk. We know that is yolk. This one. This is yolk. It is surrounded by a transparent white jelly-like fluid called albumin. Albumin. Okay, this is albumin. So albumin and yolk represents the reserve food material in cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म में जो रिजर्व फूड मटेरियल रहते हैं एल्ब्यूमिन एंड yolk उसी को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो हेंस एग इज अ सिंगल सेल. इट इज डिफरेंट पार्ट हैव लेबल्ड इन द डायग्राम गिवन है. तो हम डायग्राम को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं. So this is the egg which is broken into a flat plate. This is the air sac. Okay, this part. Cell membrane is this one. Yolk and albumin. This white portion and outer shell. तो ये हेंस एग की क्रॉस सेक्शन ऑफ हेंस एग है. तो हम चलते हैं आगे की ओर. सो द approximate sizes of some of the plant and animal are given in table 1. तो amoeba, hen's egg, ostrich egg and green algae.
So we have read ostrich's size, that is 170 mm. Insect is 60 mm. And amoeba is 1000 μm. Green alga or chara is 10 centimeter. The approximate size of some cell of human body are given in table 2. Here is table 2. Red blood cell, liver cell, human ovule, nerve cell. So red blood cell is 9 μm and liver cell is 20 μm. Human ovule is 0.1 mm or 100 μm, and about nerve cell is about 1 mm. So from here what we came to know is that one so यहाँ से हमें क्या पता चलता है 0.1 mm is equal to 100 μm. ओके, तो चलो बुक के और आ गए हम. Note 1 μm is equal to 100 to the power minus 6 meters is equal to 100 I'm telling you. 1 μm is equal to 10 to the power minus 6 meter is equal to 10 to the power minus 3 millimeters. Now there is a do you know, but I have told you I will discuss the do you knows in a separate video. Now there is one activity. Okay, the activity 1 I have told you. Activity 2 I will tell you in a separate video. So let's go to the next topic in our next video.